Good morning, everybody. In this video, I would like to introduce myself to you people first. I am Dr. Shagufta Hafiz. I did my specialization and doctoral work in clinical psychology and personality psychology. In this video, I am going to speak to you uh, not something related to your academics, but here in this video, I would like to introduce yourself to yourself. Self, this word has two components. One is outer and another one is inner component. Outer component is very well known to everyone. We know that dresses, body language, smile, our style, hairstyle, everything enhances our outer image, our outer self. We get appreciation, we become happy, we become satisfied. But when we are going through a grooming or a troubled phase of life, then we see that this happiness, this satisfaction is nowhere. That becomes volatile at the time of crisis. We find ourselves lonely. We find ourselves without a word or without an image of real self, what we are really, what we are from within. So first, we should understand that what is the need to understand ourselves, because this is the basis of every relationship. If we do not know, if we do not understand ourselves, we can't understand any relationship in this world. Life is very fast. Every moment we have to make adjustments. Every moment, the situations, circumstances, they demand us to make efforts and make a better adjustment with these situations. Sometimes we see that हमारा दिल कुछ कहता है, हमारा दिमाग हमें कुछ और डायरेक्ट करता है, और अल्टीमेटली हालात हमको किसी और पॉइंट पर, किसी और सिचुएशन में कहीं से ड्रैग करके लाके डाल देते हैं. Whether we are happy or we are not happy, but it happens with us or it happens there in day-to-day life. This is the situation, sometimes frequent, sometimes seldom, but we all face this situation in different phases of our life. It continues, it goes. In this moment of crisis, we try to understand ourselves, that what I am. Then there are number of adjectives in front of us. Many adjectives are very good. We keep them, we affirm them, and we find that these adjectives are really, they are describing ourselves. They are real appreciation or they are real adjectives. But some of the adjectives we have been given by very close members of our family, very close friends. They pinch us, they hurt us, they trouble us. Somebody says that you are artful, while another person says that you are artless. Somebody says you are sycophant, somebody says you are very much blunt. Somebody says that you are wise, while somebody says you are बेवकूफ. तो ये जो सारे कंट्रास्ट एडजेक्टिव्स हमारे सामने आ जाते हैं, ये एक इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. हमारे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि एक्चुअली मैं हूं क्या, एक्चुअली व्हाट एम आई. इस कंफ्यूजन में, इस कॉम्प्लिकेशन में कोई डिस्टर्ब होता है, तो कोई सर दर्द से सफर करता है, कोई नींद की टेबलेट लेता है, किसी को डाइजेशन के
प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है इनमें। कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है, कोई सही और गलत की पहचान खो देता है। इस वीडियो में मैं आपको अभी ऐसे 6 टिप्स बताना चाहती हूँ जो आपको अपने आप को समझने में, आपके सेल्फ को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे। और आपके साथ जब आपका एडजस्टमेंट बेटर होगा तो ये एक ट्रैक बिछा देगा, एक ट्रैक को ले कर देगा जो आपका एडजस्टमेंट दूसरों के साथ भी बेटर कर। तो पहली सिचुएशन या पहली चीज हमारे साथ में आती है कि जो ये 6 टिप्स है इनमें से पहला टिप, so tip number 1 says don't compare yourself with anyone. You are matchless, you are unique. So, and this is one of the major problem in adjustment. This is one of the major problem, uh, we can say, when we meet the people, then the people they start in establishing relationship. The moment we start comparison, we spoil our relationship. There cannot be any healthy relationship when we compare ourselves with anyone. किसी को क्यों सक्सेस जल्दी मिल गई, किसी को टाइम क्यों लगा, किसी ने ये काम मुझसे पहले क्यों कर लिया, किसी के पेरेंट्स क्यों उसको स्कूटी दे देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से कुछ हमारी लाइफ में हमारे साथ होती है, कुछ हमारे साथ नहीं होती। बट आपको एक टिप अपने साथ रखना है कि आपको अपने को कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ। जो आप हो वो आप, जो दूसरा है वो दूसरा है। सो देयर शुड नॉट बी एनी कंपैरिजन ऑफ योरसेल्फ विद एनी। सेकंड टिप यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। Adopt a welcoming attitude. Presentable again with our outer presentation. We all are very well through, very nicely we understand the importance of this presentation, and we do accordingly, according to the requirements of the situations and people. But here I am concerned that we should adopt a welcoming attitude towards the people and circumstances. The moment we accept them, 50% problem is solved. If until the moment we do not accept it, the problem day by day becomes more complicated. तो हम ना ही खुद के साथ झगड़ा करें, ना ही सिचुएशंस और हालात के साथ झगड़ा करें, और we try to make a better adjustment with all the circumstances, situations coming in our life as well as with us. So this is tip number 2. Tip number 3. Tip number 3 says that nobody is your role model. Whatever you are, whatever your role, it is individually yours only. No one else is don't deserve to be your role model, because God has assigned unique or different roles to all the individuals. The role offered to me by my creator, that is not the same role what you have to play. You have to play a different role, I have to play a different role. So no one can't be your role model. So you try to be your role model, try to understand yourself, and then lay your path, move on your path yourself. Then here tip number 4. Tip number 4 says that joy, happiness. This is really very important for life. It is very costly in the market. It is very not easily available in the market. The people they try to crush it, but we have to struggle and we have to be happy. The moment जब हम हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं तो फट से इस एज पर दोस्त हमारे सामने आ जाते हैं। फ्रेंड्स मतलब वो ही है सोर्स हैप्पीनेस का। दोस्तों के साथ हम हैं तो हम बहुत खुश हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये कहूंगी कि आप अपनी दोस्ती के लिए जरूरी नहीं है कि घर से बाहर ही हमें दोस्ती मिले।
try to find good friends there inside your home. The moment you find somebody in your family, somebody in your house as your friend, you see then the life changes. तो और दोस्ती एक ऐसी चीज है, फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जो हर रिलेशनशिप को खूबसूरत बना देती है. It must be everywhere, in the relationship of mother and daughter, father and daughter, father and son, mother and son, husband wife, mother-in-law, daughter-in-law. हर रिलेशनशिप में, नेबरहुड में, हर जगह पर एक दोस्ती का, जिसको हम बोलते हैं, एक फ्लेवर होना चाहिए, तो हमारे रिश्ते खूबसूरत हो जाते. बहुत बार हम ऐसा मन में बांध लेते हैं, मन में ऐसी चीज बना लेते हैं कि दोस्ती, फ्रेंडशिप मीन्स आउटसाइड your home. No, somebody inside the home can also be your friend. तो इसकी भी कोशिश करिए. आज कल परसों, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी होना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है और कोई मुश्किल बात नहीं है. The moment you find somebody as your friend in your family, you will be happier. फिर आपके पास 4 के बाद अब हम आते हैं 5वें, जो हमने आपके लिए एक टिप सोच के रखा है कि बी अकाउंटेबल. हम जो कुछ भी करें उसके लिए हम जिम्मेदार. वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, लाउडली हम उसको एक्सेप्ट करें, हम उसको सेलिब्रेट करें. वो हमारी सक्सेस है, वो हमारे अचीवमेंट्स है. तो जो भी जिंदगी में हम कर रहे हैं उसके लिए ब्लेम नहीं करें कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ हमने कुछ किया नहीं. अगर कुछ नहीं किया तो भी हम जिम्मेदार, बिकॉज दैट वाज माय डिसीजन. तो वॉट एवर यू डू, दिस इज योर डिसीजन, दिस इज योर रिजल्ट. तो आप अपने रिजल्ट को, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो सक्सेस हो, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको सेलिब्रेट करें, उसको में खुश हो. और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो एनालाइज करें कि व्हाई यू कुड नॉट मेक इट in the desired manner, और अगली बार उसको बेहतर करने की कोशिश करें. लास्ट, जो कि 6 टिप मैंने आपके लिए यहाँ पर सोचा है, वो टिप है कि forgive yourself. देखिए, we are human beings. We are taught कि हम दूसरे के लिए मन में ग्रजेस ना रखें, हम दूसरों को माफ कर दें. लेकिन बहुत बारी लोग, this is not a very common problem, but इन द पीपल, अगर ये प्रॉब्लम होती तो इसका रिजल्ट बहुत ही सिवियर, बहुत ही इंटेंस होता है. दैट इज वाई मैंने इसको इंक्लूड किया. और ये जो आपकी एज है, इस पर एक पिंपल, इसके ऊपर एक कमेंट, कोई चीज छोटी नहीं होती. आप मान के चलिए, नथिंग इज इग्नोरेबल एट दिस एज. एवरीथिंग इज वेरी बिग, एवरीथिंग इज वेरी ह्यूज. सो हर बात आपके लिए बड़ी हो जाती है. जिंदगी में गलतियां होगी, जितनी भी आप प्रिकॉशंस ले लो, जो भी आप सोच लीजिए, जितने भी कैमरास आप लगा लीजिए, बट इश्यूज और बट गलतियां होगी. गलती कोशिश कीजिए, जो गलती आप कर चुके हैं वो गलती रिपीट ना. लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां दूसरी होंगी, पर होंगी. ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये जो ट्रैक है, ये आप पूरा जी के चले जाएंगे और आप ने गलती नहीं हो. हमारी गलती से कभी कभी हमें नुकसान होता है, हमारी गलती से कभी कभी हमारे अपनों को दुख और नुकसान होता है. द मोमेंट हमारी गलती से हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, या हमारे अपनों को बहुत बुरी तरह वो हर्ट हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको लेकर हम एक गिल्ट मन में बनाते हैं. और ये गिल्ट हमें बहुत सीवियर सर्कमस्टांसेस या सीवियर सिचुएशंस की तरफ ले जाती है. तो दूसरों को ही नहीं, खुद को भी माफ करें, क्योंकि लाइफ इज प्रेशियस. ये हमको मिली है और ये गलतियों के साथ ही मिली है, परफेक्ट नहीं मिली है. ऐसा नहीं है कि आपको ही लाइफ इम्परफेक्ट मिली है. एवरीबडी जो अभी जी रहे हैं, जो इससे पहले जी कर चले गए, सबकी लाइफ में इम्परफेक्शंस रहे, और हमारी लाइफ में हो सकता है इन आउट ऑफ 6 टिप्स में से ऑलरेडी आप 2 टिप जो है वो प्रैक्टिस में आपके साथ वो इश्यूज ही ना हो, वो प्रॉब्लम्स ही ना हो. वेरी गुड. अब नाउ यू हैव ओनली 4 पॉइंट्स टू वर्क अपॉन.
फॉर एग्जाम्पल 2 को आप कॉन्शियसली एक्सेप्ट भी करते हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, तो इन 2 को आप थोड़ा लाइटली रख सकते हो और बाकी 2 पर बहुत एक्सटेंसिव मेहनत कर सकते हो। तो ये 6 पॉइंट्स आप 1 2 3 4 5 और फिर 6, ये 6 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं और धीरे धीरे करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपकी लाइफ, आपके एडजस्टमेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स यकीनन बेटर होंगे। सो हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, थैंक यू।